Hello, Namaste everyone. I am Ayushi Sharma, student of Journalism and Mass Communication from Uka Tarsadia University. Welcoming you all on our today's live session, Mudde Ki Baat at News Atta. So, our hot topic for today is reservation, and have to discuss about it. We have our esteemed guest, Ms. Shushmita Parashar, JMC first year student, and Mr. Krish Chaudhary, JMC first year student. So, before starting our discussion, let's have a brief about our today's hot topic, what is reservation. When our country was under the British rule the lower caste was suppressed by upper caste. Untouchability, caste discrimination were the main reason to bring up the concept of reservation, to give equal opportunity to all the class people and to make everyone aware of it. So the majorly reservation is provided to OBC, SC and ST, in which OBC enjoys 27% of reservation, SC 15% and ST 7.5%. And recently one new term has introduced, which is EWS, Economic Weaker Section, which enjoys 7% of reservation. So let's start our discussion. And so as we all know, reservation has become the most popular topic nowadays because all protests are going on. So I want you to have a brief view about the verdict of Supreme Court that has passed recently to our viewers, so they become aware of it, that what was the verdict of Supreme Court. So recently Supreme Court had passed a verdict to introduce the concept of creamy layer in the scheduled caste and scheduled tribe category. This creamy layer concept already exists in the OBC category, and it states that these sections of the society which have benefited from the reservation, their next generation should not get the benefit of reservation, because then the sections of the category who have not availed the benefit of reservation should get more priority. Okay. Then I think this is right one if on primary basis reservation is providing. So why people are protesting it? So people are protesting because they think that it threatens the constitutional rights of the scheduled caste and scheduled tribes mentioned in the Article 16, 335 and others. So the National Confederation of Dalit and Adivasi Organization have urged Supreme Court to reject this verdict, and they have also demanded to release the data of caste-based scheduled caste and scheduled tribes employees in government jobs, so that people can know that how much reservation have benefited them. कृष्ण जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज जब हम 22nd सेंचुरी में जी रहे हैं, मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं, AI का ज़माना है, तो आज भी क्या हमें रिजर्वेशन जैसी चीज़ों की ज़रूरत है? आज भी पिछड़ा वर्ग या फिर अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? हाँ, तो अभी हमारे देश बहुत डेवलप हो गया है, बहुत मॉडर्न हो गया है। फिर भी हमारे देश में कई सारी जगह पर देखा जाता है कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती है जो बैकवर्ड है, उनके साथ अभी भी अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें हो रही है, उनके साथ अभी भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमारे इंडिया में एक सर्वे हुआ था, मेट्रो सिटी का सर्वे हुआ था, जिसमें 39% लोगों ने उन लोगों ने कहा था कि हमने अभी भी देखा है कि ये अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें हो रही है, और 21% लोगों ने खुद माना है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ों में वो खुद मानते हैं। तो हाँ, मेरे हिसाब से अभी भी इंडिया में रिजर्वेशन जरूरी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज के भी समय में बहुत सारी ऐसी जगह, बहुत सारा पिछड़ा वर्ग है, कुछ आदिवासी समुदाय भी हैं जहाँ पर शायद रोड की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, उनके पास शायद इतने अच्छे घर नहीं हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स उन तक पहुँच रही है, लेकिन फिर भी आज भी उस कंडीशन में वो लोग हैं, आज भी अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो एकमात्र चीज़ जो उनको अपलिफ्ट कर रही है वो है रिजर्वेशन, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जो उनको रिजर्वेशन मिल रही है। तो एकमात्र जो उनका सहारा है जिसकी वजह से वो अपलिफ्ट हो रहे हैं और लोगों के साथ बराबरी से खड़े हो पा रहे हैं, वो भी अगर हम उनसे ले लें या फिर कम कर दें तो शायद ये कुछ गलत होगा। तो लेकिन ये सब तो रिजर्वेशन की बात होगी, लेकिन फिर जनरल कैटेगरी वालों के लिए क्या? क्योंकि वो भी आई थिंक ये इस बारे में भी प्रोटेस्ट चलते हैं, सवाल आते हैं कि जनरल कैटेगरी वालों को के साथ नाइंसाफ़ी होती है।
आई थिंक जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो गवर्नमेंट सेक्टर में दिया जा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर हमारी जीडीपी में आई थिंक 3.2 to 3.6% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही बेसलेस है कि उनके जनरल कैटेगरी के लिए नाइंसाफ़ी हो रही है। और भी अदर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर 40% कंट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी में और उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। प्राइवेट सेक्टर्स 5 to 7% कंट्रीब्यूट करता है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। सो आई थिंक कि SC और ST को जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे रही है वो बिल्कुल सही है। ओके। और एक नया फैक्टर भी है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। उसमें 10% का रिजर्वेशन है, बट वो ओवरऑल हर एक इंसान के लिए जो भी इकोनॉमिकली वीक है। तो फिर लोग कहते हैं कि जनरल कैटेगरी वालों को EWS में मिला है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो इकोनॉमिकली वीक ही हो सब। तो इस बारे में क्या है कि फिर जनरल कैटेगरी वालों के लिए रिजर्वेशन कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? आई थिंक EWS का ज़्यादा फ़ायदा जनरल को नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें 90 to 95% इंडिया की पॉपुलेशन आ जाती है। पर आई थिंक ये इसमें चेंज तभी आएगा जब रिजर्वेशन को कास्ट बेस से हटा के इनकम बेस्ड पे किया जाए। कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का एक ये भी नेगेटिव पॉइंट है कि वो हाईलाइट करता है लोगों की कास्ट और उससे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो आई थिंक अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हटा के हम इनकम बेस्ड रिजर्वेशन करें तो उसमें जनरल और सारी कैटेगरी को बहुत फ़ायदा हो सकता है। ऑब्वियसली, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लोअर कास्ट से है तो वो बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अपर कास्ट से है तो वो बहुत ही ज़्यादा रिच है या फिर बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। हर किसी को फाइनेंशियली बेसिस पे भी हम दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि आखिर कब तक हम रिजर्वेशन जैसी चीज़ों पर रिलाई करते रहेंगे, कब तक हम रिजर्वेशन की ज़रूरत हमें पड़ती रहेगी। हाँ, जो रिजर्वेशन है वो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है। जो रिजर्वेशन अभी बैकवर्ड क्लासेस को मिलते हैं ऐसा जरूर नहीं है कि वो अभी आगे चलता ही रहेगा, वो हटाया भी जा सकता है। जब सारे कम्युनिटीज इक्वल हो जाएंगे तब शायद रिजर्वेशन हटाया जा सकता है। जैसे कि जो बैकवर्ड क्लासेस है वो पहले से ही वो इतने बैकवर्ड थे कि वो अवेयर नहीं थे कि जो उनको रिजर्वेशन मिलता है उन्हें वो उसके बारे में अवेयर नहीं है कि उनको क्या मिल रहा है। उनके लिए उनको डेवलप होने के लिए उनके पास कौन सी तरीके हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि 70 साल हो गए आज इंडिपेंडेंस को, हम इतने ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हो गए, हर एक चीज़ में इतनी फैसिलिटीज़ है, हमारे पास सब कुछ है, बट स्टिल हम अपलिफ्ट क्यों नहीं कर पा रहे? हमें रिजर्वेशन पे हम क्यों डिपेंडेंट है? क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग अपलिफ्ट हो पाया आज तक? क्या रिजर्वेशन की ज़रूरत हमें हमेशा के लिए थी? इस बारे में कुछ सुष्मिता? तो जब रिजर्वेशन लाया गया था तब बिल्कुल भी ये नहीं सोचा गया था कि इंडिपेंडेंस के 70 साल बाद भी हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ही दुख की बात है। आई थिंक रिजर्वेशन की नीड तभी एलिमिनेट होगी जब हमारे एजुकेशन सिस्टम में एकदम बेसिक लेवल पे चेंजेस लाए जाए, लोगों को एजुकेशन दिया जाए और अवेयरनेस फैले लोगों में कि कैसे उनके जो राइट्स है, उनके जो रिजर्वेशन है, कैसे वो अवेल कर सकते हैं। आई थिंक बहुत सारी ऐसी भी अभी कम्युनिटीज़ है SC और ST कैटेगरी में जिनको नहीं पता कि उनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है, कैसी कैसी स्कीम्स ला रही है। तो जब तक उन तक अवेयरनेस और एजुकेशन ही नहीं होगा तब तक वो अपने बेनिफिट्स अवेल नहीं कर पाएंगे और रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा तो रिजर्वेशन होने का फ़ायदा ही नहीं होगा। क्रिश, आपकी क्या राय है इस पर? जैसा कि सुष्मिता ने कहा कि रिजर्वेशन जो मिल रहा है बैकवर्ड क्लासेस को, उसके बारे में जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है वो खुद ही अवेयर नहीं है, तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगी? ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है वो अवेयर ही नहीं है। तो उसके लिए रिजर्वेशन को एजुकेशन में रिजर्वेशन देना जरूरी है और ये ट्राई करना जरूरी है कि जो एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल रहा है वो बैकवर्ड क्लासेस तक पहुंच सके, जिससे कि वो अवेयर हो सके और एजुकेशन में अपना योगदान दे सके, वो एजुकेशन ले सके, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सके और अदर कम्युनिटीज़ के हिसाब से इक्वल हो सके। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि आज भी बहुत सारा वर्ग ऐसा है जिनके पास हर तरह की फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पा रही हैं।
और एकमात्र चीज़ जो उनको रिजर्वेशन के तौर पे मिल रही है वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट है, जो उनको सभी लोगों के बराबर पे ला रही है। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन ही एकमात्र सीढ़ी है जो सभी वर्गों को बराबर लेकर आएगी, और उसके बाद सभी साक्षर होंगे, और रिजर्वेशन जैसी चीज़ों की जरूरत शायद हमें आने वाले 100-200 सालों में ना पड़े, क्योंकि हर वर्ग साक्षर होगा। फिर रिजर्वेशन, क्योंकि ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट रिजर्वेशन का लाया ही इसलिए गया था कि सभी वर्ग बराबर हो, ना कि हमारे देश में एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज बन जाए कि सबने इस रिजर्वेशन वाली चीज को बैसाखी की तरह यूज कर लिया है और अब इसके सहारे अपना अपना मत रखते कि हमें मिल रहा है, हमें रिजर्वेशन मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। बट ये कॉन्सेप्ट इसलिए था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, सभी इक्वालिटी पे आ जाए और फिर रिजर्वेशन जैसी चीज की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो ओवरऑल हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेसिक लेवल पे एजुकेशन बढ़ाया जाए, लोगों को फैसिलिटीज अच्छी दी जाए, और फिर शायद इन फ्यूचर हम देखें कि आरक्षण मुक्त भारत हमें जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ, हमारे दर्शकों को काफी कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग।